Hello kids, welcome to the class of computer class 5. The chapter number is 6. Programming in Scratch. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to sense input and its execution. सो किड्स इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप क्या लर्न करेंगे? आप लर्न करेंगे कि स्क्रैच में कैसे जो है इनपुट को सेंस किया जाता है, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है. यूज मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन स्क्रैच एंड स्क्रैच में जो है कैसे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं एट द वेरियस ब्लॉक्स ऑफ द कंट्रोल ब्लॉक. एंड आप कंट्रोल ब्लॉक के वेरियस ब्लॉक्स को कैसे ऐड कर सकते हो. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. Warm up. Rahul wants to change the costume of the sprite. Steps are given below but are not in order. Arrange them in order to help Rahul. तो किड्स इस क्वेश्चन में क्या है, स्प्राइट के कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए स्टेप्स आपको गिवन है बट वो जो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. हम जो है उसको प्रॉपरली ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे. सो किड्स, टू चेंज द कॉस्ट्यूम द फर्स्ट स्टेप इज click on choose a sprite button on the bottom right side of the Scratch window. So we will number it as 1. The second step is select Danny sprite to click on the costume tab. So we will number it as 2. The third step is from the list of costumes select Danny B costume. And the last step is the sprite's costume will be changed. So we will number it as 4. So the correct sequence is 3, 1, 4, 2. Teacher's note. Assist the students in arranging the above steps in a chronological order. So kids, this activity will be performed by a teacher in your classroom. Hello friends. Let's learn about a few more blocks of code in Scratch. The various tasks that a sprite can carry out on the Scratch stage are already known to us. We have also learned how to change the background, color direction, and costume of a sprite. Let us now learn how to perform various sensing and mathematical operations to solve a problem. सो किड्स, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में जो है स्क्रैच में कैसे स्प्राइट की कॉस्ट्यूम्स का बैकग्राउंड और उसमें काफ़ी सारी जो है चीज़ें हमने सीखी है. इस चैप्टर में आज हम जानेंगे कि कैसे स्क्रैच में जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड सेंसिंग ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म अ टास्क. डू यू नो स्क्रैच सर्विस इज डेवलप्ड बाय द MIT Media Lab, has been translated into 70 plus languages and is used in most parts of the world. So kids, जो स्क्रैच सर्विस है वो डेवलप की थी MIT मीडिया लैब ने एंड उसको जो है ट्रांसलेट किया गया था 70 प्लस लैंग्वेजेस में एंड ये जो है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज की जाती है. सेंसिंग इनपुट एंड इट्स एग्जीक्यूशन. The light blue color coded sensing blocks are among the 8 categories of Scratch blocks. So kids, Scratch blocks की जो 8 categories है उसमें से एक है light blue color के coded sensing blocks. They are used to sense the keyboard input while executing the script as well as the location of the mouse pointer and its distance from a sprite. सो किड्स, इन ब्लॉक्स का क्या यूज़ होता है? ये ब्लॉक्स जो है यूज़ किए जाते हैं कीबोर्ड के इनपुट को सेंस करने के लिए एज वेल एज माउस की लोकेशन को भी ये सेंस करते हैं एंड उसका डिस्टेंस बताते हैं वो कितनी दूरी पे है स्प्राइट से. फर्दर दीज ब्लॉक्स डिटरमाइन वेदर अ स्प्राइट इज टचिंग अनदर स्प्राइट. एंड किड्स, इस ब्लॉक से जो हमें ये भी डिटरमाइन होता है कि वेदर जो है एक स्प्राइट दूसरे स्प्राइट्स को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा. Hence, these blocks give your sprites the ability to sense an action that takes place. So kids, इस ब्लॉक से जो है स्प्राइट्स को एबिलिटी मिलती है सेंस करने के लिए दैट कोई एक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा. Sensing a mouse click. When we click the right mouse button, mouse down, the sensing block responds. सो किड्स, जैसे ही हम जो है माउस के बटन के राइट को क्लिक करते हैं वैसे ही जो है
सेंसिंग ब्लॉक जो है रिस्पॉन्ड करता है। This implies that we can create a sprite or part of our program in such a way that it would react to our activities. So kids, इसका मतलब ये है कि हम जो है अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो है वो रिएक्ट करे। This is another example of event-driven programming when the mouse button is clicked, the script runs. And ये जो है एक और another example है इसका event-driven programming का, जैसे ही जो है हम इस पे क्लिक करते हैं स्क्रिप्ट जो है रन करने लगती है। Let me answer. What do you mean by sensing? So kids, now you will write the answer of this question on your own. Sensing a key. When a user touches a certain key on the keyboard, key space pressed, this block can be used to detect it. So kids, जैसे ही जो है कोई भी यूजर कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करता है, सो उसको सेंस करने के लिए जो है सेंसिंग की का यूज किया जाता है। When two sprites collide, this is used to detect a sprite and respond to contact with another sprite on the stage. So kids, इस ब्लॉक का यूज किया जाता है जब हमें डिटेक्ट करना होता है स्प्राइट को एंड साथ ही जो है उसका रिस्पॉन्ड विद द कॉन्टेक्ट ऑफ अनदर स्प्राइट। This is done by telling the sprite to do something when one color touches another color. So ये कैसे किया जाता है? जब एक कलर दूसरे कलर को टच करता है तब जो है हम उसके थ्रू स्प्राइट को कहते हैं ऐसा करने के लिए। Look at the code. It tells the sprite to change to the next costume when the color red touches the color yellow. So kids, जब कलर रेड टच करता है कलर येलो को तो उससे जो है एक कोड है जिससे स्प्राइट को पता चलता है टू चेंज द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। What do you mean by the term collide? So kids, now you will write the answer of this question on your own. Asking a question. This block stores keyboard input in the answer block while enabling us to put a question on the screen. So kids, जैसे अगर हमें स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन को पुट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये ब्लॉक जो है कीबोर्ड के इनपुट को आंसर की ब्लॉक में स्टोर करता है जिससे हम जो है क्वेश्चन को पुट कर पाते हैं स्क्रीन पे। द क्वेश्चन इज डिस्प्लेड इन अ कॉल आउट ऑन द स्क्रीन व्हाइल द यूजर एंटर्स एन आंसर और प्रेसेस द एंटर की द एप्लीकेशन वेट्स। सो किड्स, ये क्वेश्चन जो है इन अ कॉल आउट स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले होता है एंड जैसे यूजर जो है एंटर करता है आंसर को या एंटर की प्रेस करता है वो जो है एप्लीकेशन वेट करता है। सो किड्स, यहाँ पे जो है आप पिक्चर को देख सकते हैं आस्किंग अ क्वेश्चन, उसके लिए जो है यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स का यूज किया गया। यूजिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ब्लॉक्स आर लाइट ग्रीन colored coded blocks and are round in shape. So kids, स्क्रैच में जो है ऑपरेटर ब्लॉक्स होते हैं जो कि लाइट ग्रीन कलर के होते हैं एंड इनकी शेप जो है राउंड होती है। They are used to solve mathematical equations, basic mathematical operations, logical operations and different functions are all included in the operators group blocks. So kids, operator blocks का क्या यूज होता है, इसके थ्रू जो है हम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं एंड उनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि सारे इंक्लूडेड होते हैं हमारे ऑपरेटर्स ग्रुप ब्लॉक्स में। एंड किड्स, यहाँ पे जो आप पिक्चर को देख सकते हैं ऑफ द ऑपरेटर्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं एंड राउंड में होते हैं एंड इनकी यूज से जो हम कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं। लेट अस परफॉर्म कैलकुलेशंस इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्टेप्स 1. ओपन अ न्यू फाइल इन द स्क्रैच विंडो। सो किड्स, स्क्रैच पे आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम स्क्रैच विंडो में जो है एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे। 2. डिलीट द कैट स्प्राइट एंड चूज स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी बटन। एंड किड्स, जो बाय डिफॉल्ट कैट स्प्राइट है आप सबसे पहले उसको डिलीट करेंगे एंड आप जो है लाइब्रेरी बटन में जाके जो है कोई डिफरेंट स्प्राइट को चूज करेंगे। 3. सेलेक्ट द क्रैब स्प्राइट फ्रॉम द एनिमल्स कैटेगरी एंड क्लिक ओके। एंड वहाँ से जो आप क्रैब स्प्राइट को जो है एनिमल्स कैटेगरी में जाके जो है सेलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। 4. ड्रैग दी व्हेन फ्लैग्ड क्लिक क्रॉप फ्रॉम बटन 5 block from the events block category and place it in the script area.
एंड किड्स उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी में जाकर जो है ट्रैक करेंगे व्हेन फ्लैग क्लिक या क्रॉप फ्रॉम बटन 5 को एंड उसको जो है स्क्रिप्ट एरिया पे प्लेस करेंगे। 5 टेक दी से हेलो फॉर 2 seconds, क्रॉप फ्रॉम बटन 5 and say hello, crop from button 5 blocks from the looks block category and place them under the when flag click crop from button 5 in the script area. So kids, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है looks block category में जाके जो है say hello for 2 seconds को and say hello blocks को जो है टेक करेंगे एंड उसके बाद जो है उनको प्लेस करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में। 6. Drag the crop from button 5 block from the operators block category and club it inside the say hello block. And kids उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है operators block कैटेगरी में जाके जो है crop from button 5 block को जो है ड्रैग करेंगे एंड उसको क्लब कर देंगे इनसाइड दी say hello block में। 7. Type the text and numbers inside the block as shown in the figure. एंड उसके बाद जो है आप टाइप करेंगे टेक्स्ट और नंबर्स को ब्लॉक्स के अंदर। 8. क्लिक द ब्लॉक्स टू रन द स्क्रिप्ट एंड उसके बाद जो है ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। 9. ऑब्जर्व द स्प्राइट डिस्प्लेइंग द कैलकुलेशंस एंड उसके बाद जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्प्राइट जो है कैलकुलेशन को डिस्प्ले कर रहा है। एंड किड्स यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज द स्प्राइट एंड यहाँ पे जो है आपका जो है ब्लॉक के अंदर जो है आप अपना टाइप करेंगे द आंसर ऑफ 6 - 3 इज इक्वल टू एंड उसके बाद आप देखेंगे कि स्प्राइट ने जो है आपको आंसर दे दिया है इसके अंदर। वर्किंग विथ वेरिएबल्स, you may have noticed that when you progress to the next level in playing computer games, your score either rises or falls and is displayed on the screen at the end. So kids, आपने कंप्यूटर पे गेम्स को प्ले करते टाइम आपने नोटिस किया होगा कि जो भी स्कोर आप करते हो जब वो बढ़ता है या कम होता है, सो एट द एंड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वो सारा स्कोर जो है पूरा डिस्प्ले हो जाता है। These values are stored by using variables. So kids, ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं जो आपकी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, ये सारी वैल्यूज जो है वेरिएबल्स स्टोर करता है। A variable is a name given to a place in the memory of the computer. So kids, वेरिएबल है क्या? ये जो है एक नेम दिया गया है कंप्यूटर की मेमोरी को स्टोर करने के लिए, यानी कंप्यूटर में एक प्लेस है जहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी स्टोर होती है एंड उस प्लेस को नेम दिया गया है विच इज कॉल्ड वेरिएबल। These values can be either numbers or text. And kids, ये values जो है numbers भी हो सकते हैं और text भी हो सकते हैं। Remember it. With the Scratch app, users can snap together computer programming blocks to make interactive stories, games, art, animations, etc. So kids, आप जो है Scratch app की हेल्प से जो है स्नैप कर सकते हैं टुगेदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, जो आपको अल्टीमेटली जो है हेल्प करेगा टू मेक द इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स, आर्ट और एनिमेशंस को। मेकिंग अ वेरिएबल। सो किड्स, अब जो है आप स्क्रैच पे वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ वेरिएबल। 1. इन द ब्लॉक पैलेट क्लिक द वेरिएबल कैटेगरी। सबसे पहले जो आप ब्लॉक पैलेट पे जाके जो है वेरिएबल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। 2. सेलेक्ट द मेक अ वेरिएबल बटन। उसके बाद जो है आप मेक अ वेरिएबल बटन पे सेलेक्ट करेंगे। 3. नेम द वेरिएबल एंड वहाँ पे जो आप वेरिएबल का नेम देंगे। 4. यूज द ऑप्शंस अवेलेबल एंड उसके बाद जो है आप ऑप्शंस अवेलेबल को यूज करेंगे। तो किड्स, यहाँ पे जो है आपको 4 पिक्चर्स गिवन है। दिस इज स्टेप नंबर 1 पिक्चर। सबसे पहले जो है आप ब्लॉक्स पैलेट में जाके जो है वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे एंड स्टेप नंबर 2 में जो है आपका न्यू वेरिएबल नेम जो है ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे जो आप उसको नेम देंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। देन 3 पे जाके जो है आपका जो है क्रिएट हो जाएगा माई वेरिएबल जो नेम आपने दिया है एंड 4th स्टेप पे देखेंगे आपका जो वेरिएबल है क्रिएट हो जाएगा। Conditional statement. Sometimes we want to have programs that respond differently in different situations. We might want the program to say it's your turn, your win or your lose. So kids, कभी कभार क्या होता है, हम जो है अपने प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे रिस्पॉन्स करना चाहते हैं जो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करे इन दी डिफरेंट
सिचुएशंस में, यानी हम जो है ऐसी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो है डिफरेंट रिएक्शंस हो। जैसे हम जो है अपने प्रोग्राम में ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे इट्स योर टर्न, योर विन और योर लूज। इन स्क्रैच वेट 1 seconds, repeat 10 if, forever if or if then are the conditional blocks present in the control blocks category. So kids स्क्रैच में जो है कंट्रोल ब्लॉक्स कैटेगरी में जाके जो है काफ़ी सारे कंडीशनल ब्लॉक्स जो है प्रेजेंट है, जैसे कि वेट 1 seconds, repeat 10 if, forever if or if then. Wait 1 seconds block halts the script's execution for some duration as mentioned in the block. So kids जो wait 1 second block है वो क्या करता है, वो जो है स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन को जो है थोड़ी देर के लिए फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो मेंशन है उसके लिए जो उसको हॉल्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है। Repeat 10 block repeats a set of instructions a specified number of times. So kids repeat 10 block का क्या यूज है, ये ब्लॉक जो है रिपीट करता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉर द सेट नंबर ऑफ टाइम के लिए इन द स्क्रिप्ट। In if-then block, the script inside it will execute only if the condition given after is true. So kids, इन if-then block में क्या होता है, इसका यूज होता है कि स्क्रिप्ट जो होता है उसके अंदर वो जो है एग्जीक्यूट करने लगता है ओनली उसके बाद में जो है जो कंडीशन गिवन है जो मेंशन की है वो ट्रू हो। इफ द कंडीशन इज फॉल्स नो कोड इज एग्जीक्यूटेड, एंड अगर आपने कंडीशन जो है फॉल्स एंटर करी है तो कोई एग्जीक्यूशन टेक प्लेस नहीं करेगा। द इफ एल्स ब्लॉक चेक्स द कंडीशन बिटवीन इफ देन। सो किड्स जो इफ एल्स ब्लॉक है वो कंडीशन को चेक करता है बिटवीन द इफ एंड देन। इफ इट इज ट्रू देन ब्लॉक प्लेस आफ्टर इफ देन विल एग्जीक्यूट। एंड किड्स अगर वो जो है ट्रू है आपकी कंडीशन, सो वो क्या करेगा, वो जो है एग्जीक्यूट करेगा इफ देन को। इफ इट इज फॉल्स देन द ब्लॉक्स प्लेस्ड आफ्टर एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड अगर वो फॉल्स हुआ तो जो ब्लॉक्स आपके एल्स के आफ्टर जो है प्लेस्ड हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इन फॉरएवर ब्लॉक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कीप रिपीटिंग until the interrupting button, the stop button is pressed. So kids फॉरएवर ब्लॉक में क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कंटिन्यूसली रिपीट होती जाएंगी जब तक आप जो है स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करते। Kids IQ. Sam has written a statement in Scratch and he wants to repeat this statement at least 10 times. Suggest him the block by which he can complete this task. So kids, Sam ने जो एक स्टेटमेंट रिटर्न करी है स्क्रैच में एंड वो चाहता है कि एटलीस्ट वो स्टेटमेंट जो है 10 टाइम्स जो है रिपीट हो। सो हमें जो है उसे ब्लॉक सजेस्ट करना है टू डू दिस टास्क। सो द ब्लॉक इज रिपीट 10 ब्लॉक। Let's recall. The light blue color coded sensing blocks are among the 8 categories of the scratch blocks used to sense the keyboard. So kids, light blue colored जो sensing blocks है वो जो है एक ब्लॉक है among the 8 categories of blocks and इनका यूज किया जाता है कीबोर्ड को सेंस करने में। The category of operators group blocks of basic arithmetic operations, logical operations and various functions. सो किड्स जो ऑपरेटर ग्रुप्स की कैटेगरी है उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस और बहुत सारे फंक्शंस। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ प्लेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। एंड किड्स वेरिएबल क्या है, एक नेम है जो कि दिया जाता है एक प्लेस को जो कि कंप्यूटर मेमोरी की है। द इफ एल्स ब्लॉक्स checks the condition between if then. If it is true then block place after if then will execute. So kids जो if else block है वो एक ऐसी कंडीशन को चेक करता है which is between if and then, and अगर वो true है तो जो कंडीशन आपने प्लेस करी है आफ्टर if then वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। If it is false then the block placed after else will be executed, and अगर वो false होगी तो जो ब्लॉक्स आपने प्लेस करे होंगे आफ्टर एल्स के वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इन फॉरएवर ब्लॉक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कीप रिपीटिंग until the interrupting button, the stop button is pressed.
सो किड्स फॉरएवर ब्लॉक में क्या होता है, एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो कीप रिपीटिंग होती रहती है जब तक हम इसमें जो है स्टॉप बटन को इंटरप्ट ना करें. Fill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. Sensing blocks are of dash color. Answer is light blue. 2. Operator blocks are dash in shape. Answer is round. 3. When we click the dash mouse button, the sensing block responds. Answer is right. 4. The question is displayed in a dash on the screen. Answer is stage. 5. Dash blocks are used to solve mathematical equation. Answer is operator blocks. B. Write T for true statements and F for false statements. 1. Sprites can react to our activities. True. 2. A variable is a name given to a place in the memory of the computer. True. 3. Stop all block stops the execution of a script. False. 4. Forever blocks repeats a set of instructions a specified number of times. False. 5. Say hello block is in looks block category. True. C. Match the following. 1. Sensing blocks. The correct answer is light blue color. So we will match sensing blocks with light blue color. 2. Operator blocks. The correct answer is light green color. So we will match operator blocks with light green color. 3. When flag clicked block. The answer is in events block. 4. Wait block. Script execution stops for a specified time. So we will match wait block with this. D. Answer the following questions. 1. Write the steps to create a variable. The answer is the steps to create a variable are: number 1. On the block palette, click the variable category. 2. Select the make the variable button. 3. Name the variable. And step number 4. Use the available options. 2. What do you mean by conditional statement? The answer is conditional statement in the Scratch decides whether a programmable divides a true or false statement. It gives the ability to decide against the particular variable or another against the particular value. 3. What is the purpose of sensing a key? The answer is the purpose of sensing a key is to detect the input given by the keyboard when a particular key is pressed. 4. Why do we use variables? The answer is we use variables to give a name to a place in the computer memory. 5. What are sensing blocks? Explain any two. The answer is the sensing blocks are the light blue color coded sense blocks which gives the ability to the sprite to sense a particular action. The two sensing blocks are sensing mouse button and sensing a key. Critical thinking. Harmeet has created a program in Scratch and she wants the sprite to repeat a set of instructions forever. Recommended her the block to accomplish the task. So kids, Harmeet ने जो है Scratch में एक प्रोग्राम को क्रिएट किया है and she wants कि वो जो है sprite को कुछ set of instructions को जो है forever repeat करे. तो हमें जो है उसको block suggest करना है to perform this task. So the answer is forever block. Teamwork. Learn how to use different blocks that are accessible in Scratch and their drives functions.
1. What did you learn after the discussion? 2. Conclude your points as the project on a word file. तो किड्स इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्क्रैच में जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं उनके बारे में जो है आपको लर्न करना है एंड आप उसको जो है स्क्रैच में कैसे एक्सेस कर सकते हो एंड उनकी क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में आप पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद आप जो है डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या लर्न करा है अपनी क्लासरूम में एंड उसके बाद जो भी पॉइंट्स आपने कंक्लूड कर रहे हैं, जितना भी आपने मटेरियल लर्न करा है, आप उसको जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे वर्ड फाइल पर। So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoyed the learning. See you in next class.